Okay, good afternoon, everyone. Welcome to Paytm Money, Decode the Market with an expert analyst today. My name is Neeraj. I'm host for the show. And with me, I have Mr. Kavan Patel. Welcome, Kavan. Welcome to the show. Uh, Thank you, Neeraj sir, and good afternoon to all viewers. Okay, great. So anyway, before I start, very quickly, I'd like to read the disclaimer for this event. In fact, please understand that investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future results. All the discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. Now, having said that, it's a very interesting time till last Thursday. Friday was our market. The shape was completely different. We are having quite bearish pressure, but today we have seen market jumping more than 300 points, 350 points in the morning. So, in fact, to understand how the market looks like going ahead, so Kavan is going to help us understand that. Kavan, first thing first, why we have seen such a positive response in the market today? Is it some announcements related to our Prime Minister from on the Independence Day? Or what are the positive, what are the catalysts that's driving the market right now, Kavan? And Uh, again, to be honest, Kavan, you can आप दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोल सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश. जी सर। तो सबसे पहले सर, शो में आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एज यू स्पीक अबाउट gap up opening and positivity of market today, as we have seen the some announcement from our Prime Minister Mr. Narendra Modi on 15th August regarding GST cut around Diwali. So it uh, it brings the positive sentiment regarding we have seen slowdown in consumer sentiment, specifically in the rural area and middle and lower class product category where we have seen significant slowdown. And there is a few sectors, specifically talking about automobiles, two-wheelers, automobiles, insurance segment, then cement segment, uh, and consumers facing the white good sectors where we can see some drastic rate cuts in near term. So these are the sentiments in near terms we can expect, which will boost our local consumption demand. Definitely, there will be revenue cut from government side, but ultimately, if consumption boosts up, the revenue absolute amount will be make up sooner or later. Okay, very nice. So again, Kavan, you are an expert in technical analysis and you have been a consistent performer when it comes to giving trading and investing ideas. So again, if you can tell us Nifty perspective, right? The broader market perspective, how it looks like. If you can, share your chart and give us some kind of an analysis, tell us. You can share your screen. Yes. So I'm sharing my screen. Is my screen is visible? Yes, it's coming up. Just probably you'll have to wait for a few seconds. Yes, it's coming up now. Yeah. So here the screen I have shared is a Nifty daily chart. So first I will go to the Nifty analysis. As you have said that today we have seen the gap up opening of around 300 points in Nifty, and we have also evidently we can see from screen here we have crossed the range breakout of previous 5-6 trading session around 24,700, which is we have opened up, and if it sustain about 24,700 and it's closer above 24,700, then we can see the momentum towards 25,200 in a short term view, uh, even in this weekly expiry as well. And even for those who are trading in intraday, any levels around 24,800
is a good support. Where risk reward is relatively favorable, and we are facing some resistance around 25,000, where we can see the call writing has significantly increased in today's session. So further momentum is around, if we cross 25,000, then we can see the 24,200 levels, which is the previous swing high of 24th July. So any dip is a buying opportunity, as we can see, as we have seen already breakout, but because of a 300-point gap up, risk reward are not favorable. So currently we have seen already a correction of 100 points. If further 85 points correction comes, then we can definitely go for the long position in Nifty, where risk reward is favorable, and we can put the stop loss below 24,700, where we have seen the previous resistance, which will act as a support going forward. Okay, so that is from the trading perspective, है ना? Now हम लोग ने देख रहे थे कि last 2 महीने से almost the market एक डाउन ट्रेंड में था. Can we say that एक रिवर्सल आ चुका है मार्केट में दिस डाउन ट्रेंड का, और how likely that जो previous all time है 25,000 something 600 के आसपास, that's going to be taken out? जी सर, तो जैसे आपने बताया कि पिछले 6-7 हफ्ते से हम लोग करेक्शन मोड में चल रहे थे, और क्योंकि करेक्शन रिलेटिवली स्लोअर था, जो हमने यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रही है 24,500 के अराउंड, तो वहाँ पे हमने जून मंथ में हमने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया था. वहाँ से बहुत ही कम ट्रेडिंग सेशन में हमने 25,700 600 तक के लेवल्स देखे थे, और वहाँ से जो करेक्शन आया वो रिलेटिवली स्पीड स्लो है. जब भी हम लोग स्लोअर करेक्शन दिखते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर राइज जो है वो थोड़ा रिलेटिवली फास्टर आ सकता है. और यहाँ पे भी हम लोग देखें तो 24,500 24,400 जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके नीचे एक बार ही क्लोजिंग दिया है. तो कई बार होता है कि हम लोगों को फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है, और वहाँ से मार्केट ने एक फॉलोअप मूव नहीं दिया है, जो कि चांसेस बढ़ा देता है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन था. तो यहाँ से ये आज कंफर्म हो जाएगा, 24,700 के ऊपर आज क्लोजिंग आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, और यहाँ से हम लोग फर्दर अपवर्ड रैली करेंगे. और जैसे ये जो बिगर पिक्चर है 25,500 के ऊपर हम लोग क्लोज होंगे, ब्रॉडर पिक्चर में जो हम लोग पिछले एक साल के ऊपर से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसका बिग टाइम ब्रेकआउट 25,500 के ऊपर आएगा, जहाँ वहाँ से हम लोग एक मोमेंटम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर अभी हमारे पास है, जैसे अभी रिसेंटली जीएसटी कट का एक और ऐड हुआ है. उससे पहले हमारे बजट में इनकम टैक्स कट का ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए काफ़ी इनकम टैक्स कट दिखाया हुआ है. और उसके साथ साथ हम लोग देखें तो जो आरबीआई ने रेट कट भी रिसेंटली किया है, उसका भी बेनिफिट हम लोग नेक्स्ट 2 क्वार्टर में देख सकते हैं. और प्लस फेस्टिवल सीजन अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. तो बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में हम लोगों को स्पेसिफिकली कंज्यूमर साइड वहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है. सभी ट्रिगर अभी मतलब जो गवर्नमेंट और रेगुलेटर जो कर सकते थे उनके साइड से वो ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, वेरी नाइस. आपने रेट कट का बात कहे हैं. इनफैक्ट आई थिंक सितंबर में यूएस में भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होंगे, एंड इंडिया में भी प्रोबेबिलिटी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बैंकिंग इंडेक्स नाउ. Obviously you said that lots of triggers are there, lots of positive triggers are there for the broader market. How do the bank nifty look like? Yes, sir. So Bank Nifty also I have shared the chart of Nifty Bank of daily chart, where we can see it has also given breakout of range of previous 7 days, about 55,600. Currently, it is trading nearby that. So here we can see that previous 7 trading session we are not
able to close above 55,600, and it is trading in a range. It is a relatively stronger compared to the Nifty because here it has already break its all previous high around 54,500, which is of 2024, where Nifty is still trading below the highs of 2024. So any dip around 54,500 is a buying opportunity in banking sector. As we can see that in May month also, we have seen retesting 54,500 level, and we have seen bounce from that. And today itself, we can say that in a short term, for short term trader, we have seen the range breakout above 55,600, and we can expect the rally extend toward 57,300 for positional traders. And intraday traders, we can expect the rally towards 56,500 as well, which is the resistance here at of 31st July. So you can test, and currently risk reward are favorable to enter in the bank Nifty because it is almost there at the breakout point. So risk reward are favorable. But my suggestion to go positional because almost half of the trading session is over, and we can more likely that we can see a few gap up openings in next few days, next few trading session. So positional trader will benefit more. ओके, सो कंपैरेटिवली आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दोनों में से which looks stronger or better poised to move as we said in view of multiple triggers? करंटली सर अगर ब्रॉडर पिक्चर भी देखे तो सर बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी एक नया हाई बना चुके हैं, और निफ्टी में देखे तो पिछले एक साल से हमने जो एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। और निफ्टी में क्योंकि निफ्टी आईटी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वहाँ पे थोड़ा लेगार्ड है, वहाँ पे हमने थोड़ा अर्निंग डिसअपॉइंट भी देखा हुआ है। और क्योंकि वहाँ पे जो एफएमसीजी भी अब तक लेगार्ड था, तो वो अभी थोड़ा फ्रंट पे आके मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन साथ में लग रहा है कि कंजम्पशन डिमांड के साथ साथ हम लोगों को लग रहा है कि लोन ग्रोथ और वो सब भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा, और वैल्यूएशन वाइज भी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी रीजनेबल है। तो निफ्टी बैंक मेरी प्रायोरिटी रहेगी निफ्टी से ज़्यादा। ओके, सो निफ्टी बैंक आपका प्रायोरिटी रहेंगे। इनफैक्ट काफी सारा क्वेश्चंस आए हैं सिद्धेश्वर से। सिद्धेश्वर जी, हम लोग तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स नाउ कि आपका कोई भी क्वेश्चंस है आप पूछना चाहते हो, प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बट बिफोर दैट हम लोग और थोड़ा व्यूज है वो ले लेते हैं, उसका बाद विल गो वन बाय वन टू योर क्वेश्चंस। ओके, सो कवन, आपने कहा है कि आपने कहा है कि बैंक निफ्टी इज ए बेटर पॉइज। नाउ अगेन यहाँ पे दो कंपोनेंट है, पीएसयू बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक में दिग्गज है आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक्स, एंड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पीएसयू बैंक्स में। तो ये दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? which if you can again give us some kind of analysis stock wise also, that will be wonderful. सर पर्सनली मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक रिलेटिवली अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली रिजल्ट अभी पिछले क्वार्टर के देखे तो वहाँ पे पीएसयू बैंक्स ने वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी वेल प्लेस्ड है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस भी काफ़ी रहा है पिछले 3-4 साल में देखे तो। लार्ज कैप आपने बात किया, एचडीएफसी बैंक से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रॉडर पिक्चर में हम लोगों को एक रेंज में ब्रेकआउट रेंज में चल रहा था 3-4 साल से स्टॉक। तो 1880 के ऊपर हमको यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद एक चैनल में ये ट्रेड हो रहा है। जो ये अभी हमको यहाँ पे ये जो चैनल मैंने ड्रॉ करके दी हुई है, तो ये ब्रॉड चैनल में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो लोअर एंड
टच करके अभी यहाँ से अपर एंड में ये रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो करंटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू अराउंड 2050 तक का यहाँ पे बन रहा है पोजिशनल व्यू से, और वो क्रॉस हो जाएगा तो फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होगा। लेकिन 2050 पे हम लोगों को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि ये चैनल में घूम रहा है या फिर वहां से ब्रेकआउट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अप ट्रेंड एक इंटैक्ट है, हायर हाई हायर लो प्राइस पैटर्न बन रहा है। और जो रिसेंटली हमने निफ्टी में करेक्शन देखा तो उसमें ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक लार्ज साइड जो है उसमें उतना हमको कंट्रीब्यूशन नहीं देखा डाउन साइड में, वो थोड़ा कंसोलिडेशन में चले गए। साइमल्टेनियसली अगर हम लोग आईसीआईसी बैंक के बारे में बात करें जिसका कंट्रीब्यूशन भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक 1360 के ऊपर हमको एक कंसल्टेशन का ब्रेकआउट मिला था जहाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से रिजल्ट अनाउंस हुआ था अर्निंग के बाद। तो उसके बाद से एक साइडवेज चैनल में ट्रेड हो रहा है करंटली। अभी आज यहाँ पे अब प्रीवियस सपोर्ट रिटेस्ट करके 1410 का वहाँ से अभी ये बाउंस अटेम्प्ट कर रहा है आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि ये प्रीवियस जो हाई बना है अराउंड 1500 तो वो रिटेस्ट कर सकता है। और पीएसयू बैंक में देखे तो जो लार्जर कंट्रीब्यूटर है पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे अभी थोड़ा ब्रॉड पिक्चर में अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। वहाँ पे नए हाइज नहीं लग रहे जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में लग रहा है। तो ये थोड़ा पिछले एक साल का एसबीआई का चार्ट मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। तो जो अपर साइड जो रेड लाइन है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, जो आज भी एक रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर आज हमको यहाँ पे 840 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ से भी हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अभी तक वो क्लोजिंग नहीं मिला है तो हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे एसबीआई में। अगर 840 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है तो जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई जो हमने लास्ट ईयर यहाँ पे देखा था 910 के आसपास, वो बार रीटेस्ट हो सकता है। तो 840 के ऊपर अप्रोक्सीमेट 8 to 10% की अपसाइड मोमेंटम एसबीआई में भी दिख सकती है। लेकिन अभी वहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं मिला है जो कंफर्मेशन हमको एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में मिला हुआ है। सर आपका म्यूट पे हो सर आप। Sorry. Okay. Now, okay, we got a view on banking sector and Nifty as a whole. Now, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुए हैं डिफेंस के ऊपर, सेल्फ सफिशिएंसी इन आवर डिफेंस सेक्टर्स। बहुत सारे लोग, we have seen fantastic rally, last year, this year as well. So, can you give us some kind of idea how it looks like defense sector? डिफेंस सेक्टर। हाँ जी। सर डिफेंस सेक्टर में पहले इंडेक्स से ही शुरू करते हैं। हाँ, let's start from the index. हाँ, तो डिफेंस सेक्टर में सर हम लोग देखे तो जो रिसेंटली जो हमारा जो टेंशन हुआ था बॉर्डर पे इंडिया हाँ। पाकिस्तान, तो उस टाइम पे काफी ओवरबॉट हो चुका था। और वहां से हमने देखा कि थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला है। पिछले टाइम पे देखे तो हम लोग ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा का करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी अभी कोई रिस्पाइट नहीं दिख रही करंटली। आज भी अगर देखे तो मार्केट में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें निफ्टी डिफेंस का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा है। और पिछले 8-10 ये करेक्शन के बाद भी अभी कोई बाउंस का अटेम्प्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स लेवल पे बात करें तो अराउंड 8000 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। हाँ हाँ। तो उसका एक हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा जो करंटली 7500 और 8000 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से। 8000 के ऊपर अगर निफ्टी डिफेंस ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमको एक मोमेंटम रैली मिलेगी, क्योंकि पिछला जो स्विंग था सर वो काफ़ी बड़ा था। 5000 से ऑलमोस्ट 9000 तक की रैली वन वे हमने देखी थी। तो काफ़ी सारे स्टॉक ओवरबॉट हो चुके थे तो अभी थोड़ा कूल डाउन हुए हैं। डेफिनेटली लॉन्गर टर्म आउटलुक अभी पॉजिटिव ही है क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, अब ट्रेंड अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो डेफिनेटली फ्रेश पोजीशन अगर निफ्टी डिफेंस 8000 के ऊपर अगर जाता है तो ये मेरी सलाह रहेगी। और अगर आप अलाउ करें तो 2-3 स्टॉक का मैं शेयर कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगेन वेरी क्विकली, कवन,
मेरे ख्याल से हम लोग का 2-3 व्यूअर्स ने क्वेश्चंस डाले हैं, उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग का जो क्वेश्चन स्टॉक्स है वो डिस्कस करेंगे। एक है सुजलॉन का ऊपर, तो सिद्धेश्वर सर ने खरीदे हैं 67 में। सो अभी करंटली 57 रुपीज है। वाई इज दैट? लोग का रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं था। डेफिनेटली सर, रिजल्ट काफी अच्छा था, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से जो प्रमोटर का थोड़ा शिफ्टिंग का थोड़ा एक रूमर्स चल रहा है, उसकी वजह से हमने रिसेंटली एक हाँ। करेक्शन देखा हुआ है। लेकिन ब्रॉड पिक्चर में देखें तो अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड हो रहा है। नीचे में बिग पिक्चर में देखे तो 51 के आसपास एक यहाँ पे सपोर्ट है, चार्ट पे देखे तो। और रिसेंटली यहाँ पे आज के सेशन में भी देखे तो 60 के नीचे हमको एक ब्रेकडाउन मिला हुआ है। तो 60 के नीचे क्लोजिंग होता है तो थोड़ा फर्दर करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नीचे में 50 रुपीज एक अक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पे हम लोग देखे कि पिछले एक साल में वहाँ पे सपोर्ट लेके वहाँ से ही बाउंस हो रहा है। तो बिग पिक्चर में सर ये कंसोलिडेशन में जो मोमेंटम जो करंटली अभी जो मार्केट में चल रहा है, तो इसमें ये सेक्टर थोड़ा करंटली लैगार्ड है। लेकिन हमने पिछले देखा हुआ है कि यहाँ पे पिछले 3-4 साल में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने देखा चुका है, मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये डाउनफॉल में जा रहा है, हम्म। बड़ी रैली के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो अगर उनको अलाउ कर रहा है अराउंड, मार्केट भी अगर वो अपॉर्चुनिटी देता है तो अराउंड 50 रुपीज के आसपास आए तो मेरे ख्याल से और अक्यूमुलेट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बड़ा मोमेंटम अपवर्ड साइड में 71 के ऊपर ही आएगा, जो यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई। 71, 72, 73 का हाँ। ऊपर ही आएगा, मतलब हाँ, ये जहाँ रेंज पे ब्रेक। हम्म। हाँ, जहाँ पे मई मंथ में हमने एक बैरियर देखा था, और वो सेम अक्टूबर में भी वहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो वहाँ पे एक सप्लाई करंटली है। जैसे भी वो, जैसे ही उसके ऊपर क्लोज होगा तो वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुका होगा, तो वहाँ से एक मोमेंटम भी मिलेगा। हम्म। एंड देयर इज अनदर स्टॉक फ्रॉम रोहित। रोहित ने पूछा है कि मुफ्टी, दैट इज अ क्रीडो मार्केटिंग, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ट्रेडो मार्केट, ओके। या ये सर पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ स्टॉक तो। ओके। या मुफ्टी। ये ओहो, या सर, ये मेरे लुक्स ख्याल वेरी से पोर। रिसेंट लिस्टिंग ही है और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ऑब्वियस सजेशन तो यही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल मैंने इसके नहीं ट्रैक किए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बाउंस आता है अराउंड 155 के आसपास, तो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, हम्म। तो वहाँ पे एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई चार्ट पे भी कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिख रहा है, और कंटिन्यूसली कंपनी नए लोस हाँ बनाते जा रहे हैं सर। ओके ओके। नाउ अगेन मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि ऑल द स्टॉक्स दैट इज बिन डिस्कस्ड हियर आर नॉट रिकमेंडेशन। ओके। एंड अगेन कवन इज a SEBI registered research analyst, so here it is only purely for educational understanding के लिए कि how to analyze a stock and how to anticipate kind of a move. So it is not a recommendation, this is purely educational and analysis. कवन, एक और क्वेश्चन है सौरभ से, IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे भी सर एक अटेम्प्ट ले रहा है करंटली, एक साइडवेज रेंज का शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट अराउंड करंट लेवल के ऊपर 71 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है आज, तो यहाँ से 73 और उसके बाद 77 तक के लेवल उनको दिख सकते हैं। और बिग पिक्चर में देखे तो 77 का लेवल जो ये करंटली ये जो फॉलिंग ट्रेंड रेड लाइन है। ट्रेंड लाइन है, उसका एक थोड़े 1.5-2 साल से वो मतलब वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो 77 के ऊपर अगर क्लोज मिल गया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा उसके ऊपर। और प्रीवियस जो हाइज हमने देखे थे अराउंड 100 के आसपास, हम्म। वो भी लॉन्ग टर्म में दिख सकते हैं। नीचे में 65 रुपीज का एक सपोर्ट है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, और करंटली एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। और
चांस है कि अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंस अटेम्प्ट करेगा। तो Mm-hmm. उनके पास है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। Okay, wonderful. So, Kavan, again, going back to you, you were showing us some stocks and the sectors. सर स्टॉक्स के बारे में बात करें पहले तो सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक से बात करें तो आज एक एशियन पेंट स्टॉक है, वहाँ पे हम लोगों को Aha, एक बेस lovely. फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनने के बाद यहाँ पे एक आज ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो Mm-hmm. अगर आज क्लोजिंग 25-30 के ऊपर हो रहा है, जो कि लग रहा है कि हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को फर्दर अपसाइड मिल सकती है। और जो यहाँ पे हमने जो नवंबर मंथ में जो एक गैप देखा हुआ था, वो यहाँ पे फील Correct. हो सकता है। अराउंड 27-70 के तक का मोमेंटम यहाँ से हमको मिल सकता है। तो अराउंड 10% की अपसाइड यहाँ से भी एक मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो Mm-hmm. एक एशियन पेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सीमेंट स्टॉक में एक थोड़ा आज बज़ है सर, और Mm-hmm. काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सीमेंट स्टॉक। और चांसेस यहाँ पे है कि वहाँ पे Aha. रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो ईसीसी एक स्टॉक है जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पे ये ट्रेड हो रहा है, वहाँ से बाउंस ले रहा है। और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1840 पे यहाँ पे आज डबल बॉटम भी बना रहा है। तो Mm-hmm. यहाँ पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है लॉन्ग जाने के लिए। अ, तो ये भी एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2030 तक का जो प्रीवियस स्विंग आई है, वहाँ तक का शॉर्ट टर्म में वहाँ पे बाउंस देख सकते हो। और बिग पिक्चर में काफ़ी बड़ी अपसाइड है, लेकिन पहला लेवल अगर अचीव होता है उसके बाद हम लोग वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं आगे के सेशन में। तो करंटली यहाँ पे भी नीचे में 1780 का एक सपोर्ट है, और ऊपर में 2030 के लेवल तक का हम लोग काफ़ी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। और प्राइस Lovely. एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। आज वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बन रहा है। तो सीमेंट सेक्टर में भी जो जीएसटी कट है 28% करंटली स्लैब है, तो वहाँ पे वो कट होगा तो वहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है सीमेंट सेक्टर। और क्योंकि पिछले 3-4 साल में अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को हम लोग साइड कर दें तो बाकी सारे Mm-hmm. सीमेंट स्टॉक्स में उतना हमको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन और वो सब भी काफ़ी रीजनेबल है। अ, तो ये दो स्टॉक थे। उसके बाद सर एक इमामी करके जो एफएमसीजी स्टॉक है, डिस्क्लोजर यहाँ पे सर ये रहेगा, हमारे क्लाइंट को भी हमने थोड़ा रेकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जो यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, Mm-hmm. वो ये रेंज में से बाहर निकला हुआ है आज। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि ये 625 के लेवल तक का यहाँ पे एक बाउंस आइटम हो सकता है। और यहाँ पे नीचे में जो देख रहे हैं कि 575 के आसपास काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके नीचे स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है। और वैल्यूएशन वाइज भी दूसरे एफएमसीजी स्टॉक से ये काफ़ी चीपर है। जो दूसरे एफएमसीजी स्टॉक 50-70 पी पे ट्रेड हो रही है, 30 पी पे करंटली ट्रेड हो रहा है। और अर्निंग्स भी अगर देखें तो करंट क्वार्टर फ्लैटिश था, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर में डबल Mm-hmm. डिजिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो रिलेटिवली यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो आपने 3 स्टॉक्स दिखाए हैं, एशियन पेंट्स, एसीसी एंड इमामी। ऑल लुक्स वेरी गुड। एशियन पेंट्स का स्ट्रक्चर रियली रियली मुझे अच्छा लगा देख के। तो इवन ऑल बाकी स्टॉक्स एसीसी का भी इट्स अ ग्रेट पुल बैक, यू नो। ओके, एक वसीम शेख का एक क्वेश्चन है, एस्कोट कुबातो। यहाँ पे भी सर अच्छा मूर्ति है। एक करंटली एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करके वहीं पे थोड़ा आज एक बार ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट लिया हुआ है। यहाँ पे हम्म। 2630 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो करंट लेवल भी वहाँ पे ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है सर, हम्म।
थोड़ा ब्रॉडर भी ले 3650 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम प्राइस पैटर्न बना हुआ है। हम्म। तो उसका एक ब्रेकआउट हमको मिलेगा और उसके बाद हम लोग प्रीवियस जो हाई है 4400 के आसपास वो देख सकते हैं, क्योंकि आज ऑटो सेक्टर इटसेल्फ काफी बूमिंग है, ऑलमोस्ट 4% के ऊपर का वहाँ पे रैली है। तो वो ऑटो स्टॉक्स मैंने नहीं लेने का रीजन ही वही था कि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म में थोड़े मैच नहीं हो रहे, क्योंकि आज थोड़ा हम्म। ज्यादा चल चुके हैं। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर में देखते हो तो काफी सारे ऑटो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। तो ओके। इसमें मेरा रेकमेंडेशन यही रहेगा, 3650 के ऊपर आप प्राइस भी बना सकते हैं। मुझे पता नहीं आपकी पोजीशन है कि नहीं है, हम्म। लेकिन 3650 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा ये। हाँ हाँ। So currently around trading around 3629. यस। So again, Washim ji, these are not recommendation. Please, okay, these are purely analysis only from Kavan's perspective, है ना? Kavan, few more sectors that you like, you think that really it's a good time. Because एक चीज हम लोग ने देखे हैं आज, I was just going through a report कि Indian market is the most underperforming markets in the world in last few months, you know. So is it going to reverse? Because again, there's a credit rating. Standard and Poor have upgraded the credit rating, and also they have upgraded the credit rating of certain Indian companies, banks as well. So in that perspective, आपको long term में 1-2 साल का perspective में आप market को कहाँ देखते हो? सर मार्केट का जैसे आपने बताया कि रिलेटिवली हम लोग पिछले एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे मार्केट अगर देखें, इमर्जिंग हम्म। मार्केट में भी देखें तो अ, दूसरे मार्केट स्पेसिफिकली ब्राजील ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया हुआ है। और यूएस Correct. मार्केट भी देखें तो वहाँ पे भी जो भी हमने टैरिफ वॉर के चलते हुए जो फॉल देखा हुआ था वो पूरा रिकवर हो गया और नए हाई वहाँ पे भी लग रहे हैं और हमारे यहाँ नहीं लग रहे। तो एक मेजर सर डिसअपॉइंटमेंट जो हमने पिछले 2 क्वार्टर में अर्निंग साइड देखा हुआ था, लार्ज हम्म। कैप स्टॉक्स में बहुत रेयर स्टॉक है जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ मिल रहा था। मोस्टली स्टॉक्स जो हम लोग देखे, बैंकिंग स्टॉक्स या फिर आईटी स्टॉक देखे या इवन एफएमसीजी लार्ज कैप देखे, तो वहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आ रहा है। तो अभी लग रहा है कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग एनबीएफसी और बैंकिंग का देखें तो वहाँ पे जिस तरह से रेट कट हुआ है, तो वो एक सेक्टर है जिसका निफ्टी में कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लीड कर सकता है। प्लस निफ्टी आईटी भी देखे तो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो वहाँ Correct. पे भी हम लोग एक बाउंस अगर अटेम्प करे देख अटेम्प अगर वो करता है तो वो भी निफ्टी को काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जाएगा। तो करंटली जो मैंने लेवल्स भी शेयर किए थे, पहला कंडीशन ये कि 25,500 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज होते हैं तो वहाँ से हम लोग आराम से 20% की रैली, मोमेंटम रैली हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि काफ़ी एक साल से हम लोग ने परफॉर्म नहीं किया है। हाँ, हम्म। डेफिनेटली उससे पहले 2022-23 में हमने काफ़ी बड़ी रैली देख चुके थे। तो एक ब्रीदर ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको थोड़ा पेनफुल ज़्यादा लग रहा है रिलेटिवली। लेकिन मेरा सर टारगेट यही है कि अगर ये 25,500 निकलता है तो हम लोग डेफिनेटली 30,000 तक निफ्टी 12 to 18 मंथ में जा सकते हैं। Okay, great. So 25,500 is a very critical kind of a resistance that you are seeing, right? Yes. Once crossed that, we can see a very good rally. What you mean to say? So again, कौन सा सेक्टर्स आपको सबसे बढ़िया लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आपने एफएमसीजी का बात कहे हैं. व्हाट आर द सेक्टर्स? इज इट पेंट सेक्टर एज वेल? बिकॉज एशियन पेंट्स, देयर आर बर्जर पेंट्स, देयर आर Nerolec, there are so many companies are there. यस डेफिनेटली सर, अगर टॉप डाउन से देखें तो प्रायोरिटी वाइज देखें तो सबसे पहला फोकस एनबीएफसी सेक्टर पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रेट कट का वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहते हैं। Okay. तो जो प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी है वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि अभी जीएसटी का भी जो अभी एक्सपेक्टेशन जो आज लग रहा है
तो उससे और थोड़ा बूस्ट वहाँ पे बढ़ गया है, स्पेसिफिकली कंज्यूमर फेसिंग साइड एनबीएफसी देखे तो वहाँ पे हमारा टॉप प्रायोरिटी एनबीएफसी रहेगा। उसके बाद हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक पे देख रहे हैं। तीसरा सेक्टर सीमेंट रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी रहा है और वहाँ पे भी ये जीएसटी रेट कट से भी काफ़ी एक डिमांड बूस्ट होगा। और क्योंकि लोकल इकोनॉमी पे अभी थोड़ा फोकस ज़्यादा बढ़ गया है तो सीमेंट सेक्टर एक रहेगा। और वहाँ पे स्टॉक भी फॉल में इतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पिछले जो 6-7 हफ्तों से हमने निफ्टी में करेक्शन देखा। सीमेंट स्टॉक्स रिलेटिवली बेटर कर रहे। डेफिनेटली पेंट स्टॉक जो आपने बताया उसमें टॉप पिक एशियन पेंट ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे देखा है अल्ट्राटेक और जो ग्रासिम ने जो अनाउंस किया था कंपटीशन, उसका काफ़ी कुछ पेन ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। और डेफिनेटली मार्केट शेयर अभी भी एशियन पेंट के साथ ही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली टॉप प्लेयर एशियन पेंट के साथ जा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी वहाँ पे कंपटीशन दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन में काफ़ी कुछ प्राइसिंग लग रहा है, तो वहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो कंज्यूमर स्टॉक डिस्क्रिशनरी साइड, उसमें डेफिनेटली लीकर स्टॉक आ गए जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ वो सब जा रहे हैं। एफएमसीजी में सिलेक्टिव रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत सारे स्टॉक की काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है डिस्क्रिशनरी साइड, तो वहाँ पे भी सिलेक्टिव सर हम लोग देख सकते हैं। डेफिनेटली एक फुटवेयर स्टॉक्स भी है जहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वॉच लिस्ट में। बाटा है, कैंपस है वहाँ पे, तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी रहा है। और क्योंकि यूएस टैरिफ का वहाँ पे भी पेन पॉइंट है, तो चांसेस है कि उनको बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट कुछ जीएसटी में या फिर कुछ पॉलिसी थ्रू बेनिफिट वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये 4-5 सेक्टर है जहाँ पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा है सर। Okay. Now FMCG, NDFC is your NBFC is your top pick. So वहाँ पे कौन सा stocks technically looks very good at this point of time? वहाँ पे सर दो स्टॉक मैं दिखाऊंगा जहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला है एल&टी फाइनेंस। तो एल&टी फाइनेंस में देखेंगे तो थोड़ा ब्रॉडर व्यू मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे करंटली अराउंड 210 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 200 के लेवल पे जो ये रेड लाइन दिख रही है सर स्क्रीन पे, Beautiful. तो यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं कि बिग पिक्चर में कप एंड हैंडल प्राइस पैटर्न बना हुआ है। Beautiful. हाँ, Yes. जो अक्टूबर 2017 में जो हाई लगाया था, उसके बाद सिमिलर प्राइस के आसपास 2024 में भी हाई लगा है। और अभी वो प्राइस क्रॉस करके वहाँ पे सपोर्ट लेके वहीं से आज बाउंस अटेम्प्ट कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। और पिछले अगर 6-7 साल से देखें तो यहाँ पे हमने कुछ प्राइस में उतना, मतलब अगर किसी ने 2017 में भी लिया है तो वो भी अभी वहीं पे ही है। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल, ईबी कैपिटल। तो वहाँ पे भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही है। आदित्य बिरला कैपिटल देखे तो यहाँ पे 250 के लेवल पे हमने अराउंड 2017 में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे तो वन वे फॉल देखा आया हुआ है ये स्टॉक में। और उसके बाद अभी रिसेंटली वो लेवल क्रॉस करने के बाद एक बार रिटेस्ट भी हुआ और वापस से अभी आज भी इटसेल्फ नया हाई लगा रहा है यहाँ पे अगलो। Okay. तो यहाँ पे भी मतलब अभी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लगेगा कि काफी चल चुके हैं, लेकिन अगर बिग पिक्चर में देखेंगे तो पिछले 7-8 साल में यहाँ पे कुछ उतना रिटर्न नहीं बना है। अगर जिन्होंने अगर इनिशियल लेवल से एंटर हुए तो उनका अभी रिटर्न नहीं बना है, लेकिन यहाँ से काफी बड़े अप मूव एक्सपेक्टेड ये दोनों स्टॉक्स में। मिड कैप एनबीएफसी है ये दोनों। Lovely. There's a question from Syed. JSW Cement IPO. Uh, any view? यहाँ पे चार्ट होगा? JSW Cement का चार्ट नहीं होगा शायद। चार्ट सर बहुत ही लिमिटेड होगा, 1-2 दिन का ही होगा, तो चार्ट पे तो कमेंट्री करना काफी मुश्किल है। डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्योंकि आईपीओ में सर ओवरऑल पिक्चर यही रहता है कि थोड़ा प्राइसिंग कई बार हाई रहता है,
तो हम्म, अगर आपने लिया है तो थोड़ा कई बार एक दो क्वार्टर में ये आईपीओ लेवल के नीचे भी आते हैं। और ओवरऑल जैसे मैंने बताया सीमेंट सेक्टर में आउटलुक अच्छा है, तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की पेडिग्री भी काफ़ी अच्छी है। हमने ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड देखा हुआ है। अभी रिसेंटली इससे पहले उनका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ आया था, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई डीप आता है तो डेफिनेटली ऐड करने की सलाह रहेगी। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल ही थे, उन्होंने आईपीओ में टेबल पे कुछ और रखा नहीं था, तो अगर हम लोग देखें तो लिस्टिंग गेन भी वहाँ पे कुछ थे नहीं। हाँ, हम्म। लेकिन ये जीएसटी का ट्रिगर वहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। और पिछले 3-4 साल में सीमेंट सेक्टर ने कुछ किया नहीं है, तो अभी चांसेस है कि ये यहाँ पे ये सेक्टर में एक अपटर्न हम लोग देख सकते हैं। तो बाय ऑन डीप का एडवाइस रहेगा मेरा। ओके, लवली लवली। अगेन हम लोग का व्यूअर्स जो है, आई होप दैट यू आर गेटिंग इनसाइट, योर क्वेश्चंस गेटिंग आंसर्ड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मन में, प्लीज फील फ्री, गो ahead, type your question in the chat box, and would like to pick up your question for discussions. Now again, in the meantime, before we finish close the session today, uh, today is the first day of the week, okay, and it started with a bang, gap up. So for option strategies, for option traders, any kind of advice that you would like to give? सर ऑप्शन में मेरी एडवाइस जनरली, मेरा जो स्किल है वो ऑप्शन बाइंग में है, तो हाँ, उसके ऊपर ही मैं थोड़ा कमेंट करूंगा। तो बिल्कुल। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तीन चीज़ें जो बेहतर कर सकते हो। एक है कि आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो तो एट द मनी के आसपास करो। थोड़ा एक्सपायरी से थोड़ा एक दो दिन दूर रहोगे तो बेटर रहेगा ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि लास्ट एक दो दिन में काफ़ी डिके होता है। तो अगर आप सेम चीज़ जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी कर ले और आपको निफ्टी करना है तो आप एक वीक आगे का भी ट्रेड कर सकते हो। और थोड़ा पोजिशनल व्यू बेटर है। इंट्राडे में भी डेफिनेटली नहीं मिलते हैं, लेकिन रिलेटिवली पोजिशनल ट्रेडिंग में एज क्रिएट करना, एज ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। जैसे आज भी हमने देखा कि 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद इंट्राडे का गेम शुरू होता है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के लिए वो एज रहता है अगर आप एक ट्रेंड फॉलो करो तो। और ट्रेंड के अगेंस्ट जनरली अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेंड कहाँ पे खत्म होगा वो मार्केट ही डिसाइड करता है। तो हम लोग टॉप या बॉटम पॉइंट आउट करेंगे और ट्रेड बना लेंगे तो मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो ट्रेंड को फॉलो करना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है। ये दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आप रिलेटिवली काफ़ी बेटर करोगे। सर आप म्यूट पे हो। नीरज सर आप म्यूट पे हो। ओके, थैंक यू सो मच। कवन, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सुनील। उन्होंने पूछे है अदानी गैस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। सर अदानी गैस में देखे तो पिछले काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नीचे में 530 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है लॉन्ग टर्म में। ऊपर से काफ़ी प्राइस डैमेज हमने देखा हुआ है, तो एक टाइम पे 3000 के ऊपर चल रहा था और वहाँ पे ऑलमोस्ट 500-600 के रेंज में चल रहा है। लेकिन अभी ये एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है, तो हम्म, डेफिनेटली यहाँ पे अक्यूमुलेशन जोन है नीचे 550 के आसपास। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 550 के आसपास आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। और वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, और इसमें मूव भी काफ़ी वेलोसिटी से आता है। जनरली हमारे रडार से निकल जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने क्विकली मूव होते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहते जब मूव आने के बाद हमारे रडार पे आता है। लेकिन अभी एक दो साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपसाइड एक्सपेक्टेशन है। और फ्रेश अपसाइड अगर हम लोग देखें तो 725 के ऊपर ही आएगा, जो हमने जून मंथ में यहाँ पे रिसेंटली स्विंग हाई देखा हुआ था। हम्म, इसके ऊपर क्रॉस होगा तो एक हायर हाई हायर लो का एक फ्रेश फॉर्मेशन बनेगा।
करंटली वो फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी हम सपोर्ट के पास ही है। पिछले 2 साल में अगर हम लोग देखें तो 550 के नीचे ये सस्टेन नहीं होता है। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अभी निकलने का टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आता है तब आप निकल सकते हो और अक्यूमुलेट कर सकते हो कोई भी डीप आती है तो। ओके ग्रेट। सो एनीवे लेवल वाइज लुक्स गुड नाउ, है ना, लेकिन एज यू सेड कि उसका मेजर अपसाइड आएगा थोड़ा ऊपर, आप दैट प्रीवियस हाई इज टेकन आउट। अगेन सौरभ, लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग नाउ सौरभ से, पीसी ज्वेलर्स फ्रॉम 9 months, बिकॉज उनका मानना है कि लॉट्स ऑफ फेस्टिवल सीजन आर कमिंग अप, बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? डेफिनेटली पीसी ज्वेलर थोड़ा पैनी काइंड ऑफ स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो करंटली 12 रुपीज 84 पे चल रहा है। यहाँ पे 1150 के आसपास हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट है। तो वहाँ पे आप अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो थोड़ी ऐड भी कर सकते हैं। और वहाँ पे सपोर्ट लेके ये शायद वापस जो प्रीवियस आई है 19 रुपीज के आसपास का, वो हम्म। एक बार रीटेस्ट हो सकता है। अगर 19 निकला तो मोमेंटम बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ब्रॉड बेस में 11 से 19 रुपीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अभी लोअर साइड पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है ऐड करने का, लेकिन 11 रुपीज के नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक बार एग्जिट की स्ट्रेटेजी बेटर रहेगी। आ, तो यही आउटपुट रहेगा। वंडरफुल। कवन, थैंक यू सो मच। हम लोग ने काफ़ी सारा स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, सेक्टर्स डिस्कस किए हैं। यू हैव गिवन अस द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द मार्केट एज वेल एज शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ द मार्केट, राइट? Again, I would like to again reinforce the point here that whatever stocks that we have discussed, these are purely educational in nature. These are not recommendations. Agar if you want to really, take action, please consult your investment advisor. And Kavan is a registered investment research analyst, and he has been associated with Paytm Money for quite some time. And I would like to really appreciate all the participants and Kavan specifically. Thank you so much, Kavan, for being a part of this program and giving us your insight about the stocks and the market. Thank you, Kavan. Thank you, everyone. Thank you, Neeraj sir, for giving me opportunity, and thank you everyone for joining us. Thank you, guys. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.